about yourself? Good evening, ma'am. My name is Yogesh Sawan. I am from Pune, Maharashtra. I completed my graduation from Pune. I am that kind of person who likes travel a lot and interact with the people and learn from them. And my strengths are, ma'am, I have good convincing power. My communication skill is good. I am confident. That's all about me. Thank you, ma'am. What is your passing year? In which year you passed your To, graduation, bachelor's? ma'am, in 2019, ma'am, from BTech. 2019. So are you Yes, ma'am. pursuing your master degree? No, ma'am. No. So you are a No. fresher, or you already doing something means works in other organization? No, ma'am. Actually, due to Corona breakdown, I don't go anywhere. I Okay, so help you're my totally fresher, right? yes, yes, ma'am. Okay. What is your interest and hobby, Yogesh? Actually, ma'am, I am interested in communicating with the peoples, and I like Okay. travel more. And my interest is actually communicate with the other peoples. This is my interest, ma'am. So I believe that you completed your B.Tech. Then why you want to shift into sales? Means you completed your graduation engineering degree. Yes, Then ma'am. why sales? Yes. Actually, ma'am, I am from technical background. I know, but I am not interested in the technical background, ma'am, because uh, I Then am why you interested wasted in your sales. 4 years? Means in your career 4 years, why you wasted? Means if you don't have any interest in your field, then why you Because, wasted your career in B.Tech? ma'am, actually, in the after the 12th standard, I don't know about what I do. So at that time, some seniors told my parents that engineering is now very booming now. So that's why they forcefully admitted me in the Okay, so college. it's not your choice. Means B.Tech is not your choice. You are No, doing by ma'am. Actually, ma'am. forcefully. Okay. Yeah. So do you have any prior experience in sales domain? Actually, ma'am, professionally, no, but in my family, our own business of sales, such as we have one shop. So Okay. I have that kind of experience, ma'am. Because I So, sometime when I free that time I handle our shop. so Yogesh, you completed your bachelor's in 2019 and it's Yes, ma'am. 2022. So what are you doing in these 3 years? Are you preparing for government job or something? Actually, ma'am, after 2019, ma'am, I seen many jobs in the different categories, but due to Corona, I don't go anywhere. So I handle our you're applying for jobs, right? yes, but not the technical field, ma'am. Okay, so sales. Then why you want to join Byju's? Why you want to join Byju's? Because, ma'am, I search all the companies of this field in the field of sales, ma'am. But Okay. Byju's is one of the most growest company in the world now, and So Yogesh, tell me the one actual thing. What motivates you most to join Byju's? actually, ma'am, here career growth is very good, and here more than 10,000 people with their experience. So my hobby is I learn something new. So I get if I get placed in that company, so I can learn daily new things on the daily basis. So this improves True. my personality also, ma'am. Okay. So do you know what is the previous name of Byju's? What is the previous name of Byju's? I think and grow private limited. I think. Think and Uh, Grow. no, Okay. sorry. I sorry, ma'am, I Okay, don't know. Yogesh, no issue. Please tell me few features about Byju's. Okay, ma'am. Actually, in the Byju's app, all the subjects and topics are in the form of videos, ma'am, 3D animation. And Okay. after that, and they connected with and they teach us with the connected with real life examples. And there is lots of mock test also.
there is a type of Quizo types, which is on the level of national level, and there are many national scholarship tests also, ma'am. There is a Parent Connect app. In that, from this app, parents can watch the children's Parents activity can and monitor. Yeah. monitor. Okay. Yes, Got yes, your point. Yeah. Got your point, Yogesh. My last question to you, like, do you know who is the co-founder of Byju's? yes, ma'am. Byju's Ravindran. No, I'm asking co-founder. Co-founder Divya Gokul. Co-founder, sorry, Divya Divya Gokul. Gokul. Hmm. Yeah. And what is the establishment year of Byju's? 2011, ma'am. Perfect. So now I'm going to ask you few scenario-based question. Okay. So as you treat Okay. yourself as a customer, okay, and I'm your you treat yourself as a salesperson, and I'm the customer. Okay. Suppose you have your own electronic shop, okay, and you have to sell me a headphone. One side is working Okay. and another side is not. So how will you convince me to buy your product? Okay. Okay. One earphone is working, or One side second is is no. another Okay. not. Okay. 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 Yeah. Okay. So, ma'am, can I explain in Hindi, ma'am? Okay, go ahead. Okay, no problem, ma'am. No issue. You can speak with Hindi. ओके हेलो मैम एक्चुअली हमारा इलेक्ट्रॉनिक का शॉप है हम बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बेचते हैं सो मैम हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं तो उसमें ईयरफोन हमारा बहुत अच्छे भी रहता है मैम एक्चुअली मैं आपको जो अभी जो प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ मैम वो बहुत बढ़िया ब्रांड का भी है वो स्वेट प्रूफ भी है और उसका उसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है मैम एक्चुअली ये हेडफोन आपको बहुत अच्छे से सूट भी करेगा मैम और मैं ऐसा चाहता हूँ कि एक्चुअली रियल लाइफ में कैसा होता है मैम एक्चुअली वन साइड कभी भी फ्री होना चाहिए क्योंकि आज हमारे आसपास जो रहते हैं तो उनके उनके ऊपर भी थोड़ा सा ऑब्जर्व हमें रहता है क्योंकि वो हमें कुछ बुलाते हैं तो हमारा भी थोड़ा सा उनके ऊपर ध्यान रहना चाहिए इसलिए एक साइड का वो तो हम ठीक है ज्यादा से सर, ज्यादा यूज पर करते हैं मैं मतलब क्यों आपका ये प्रोडक्ट परचेस करूँ? मीन्स एक साइड वर्किंग नहीं मैम कर रहा तो मेरे एक्चुअली लिए ये क्या बेनिफिट होगा? नहीं नहीं एक्चुअली मैम आई नो दैट बट मैम ये बहुत अच्छे ब्रांड का है और बात रही वो कि आपको इस प्राइस पे दूसरा कौन सा भी आप ले लो उतना बढ़िया क्वालिटी क्योंकि आप अगर ये अच्छा दोनों साइड वाला अच्छा लेने जाते हो तो इसकी प्राइस बहुत बहुत ज्यादा है मैम आपको मैं बहुत अच्छे डिस्काउंट पे दे बेच रहा हूँ मैम और वैसे भी हम सर वन आपको साइड का लगता है कि ज्यादा यूज मीन्स करते एक हैं साइड काम नहीं कर रहा है, ये मेरे लिए बेनिफिट होगा? आप एक काम करो, मैं आपको फुल पेमेंट करती हूँ, ठीक है, बट आप मुझे अच्छे ईयरफोन सेल करो कि दोनों साइड वर्किंग कंडीशन में हो। वन साइड इज नॉट वर्किंग, मुझे नहीं लगता है कि मेरे लिए कुछ बेनिफिट होगा। ऐसा हेडफोन ले जाऊंगी तो आई डोंट थिंक कि मैं सेटिस्फाई हो पाऊंगी कि एक साइड वर्क नहीं कर रहा है और एक साइड कर रहा है। नहीं मैम एक्चुअली कैसा रहता है कि ये देखो अगर आप कहाँ भी जाते हो तो अगर आप दोनों साइड से जब सुनते हो तो आपका ध्यान नहीं रहता है कहाँ पे क्या चल रहा है कहाँ पे क्या चल रहा है तो हमें थोड़ा सा अवेयर भी रहना पड़ता है मैम एक्चुअली थोड़ा सा तो इसलिए आप उसका यूज कर सकते हो और आप थोड़ा सा आपका पैसा बचा सकते हो मैम अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट अगर आपको कम कीमत में मिल रहा है और आपकी जो यूटिलिटी है तो वो भी आपकी जरूरतें भी पूरी हो रही है ना मैम एक्चुअली तो आप क्यों ज्यादा पैसा वेस्ट कर रहे हो ना उस पे अगर आप ओके योगेश, आई गॉट योर पॉइंट, मुझे पता चल गया आप कैसे पिच कर रहे हो। नाइस। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू यू, ओके, सपोज यू हैव योर ओन कॉस्मेटिक शॉप, ओके, ओके एंड आपने मुझे एक क्रीम सेल किया था जो कि मैंने यूज किया था, वो एक्सपायरी था, एक्सपायरी वंस आपने मुझे सेल किया था एंड उसको यूज करके मेरे फेस डैमेज हुई है, ब्लैक पैचेस हुई है। सो आई एम केम इन योर शॉप एंड आई एम सेइंग कि आपकी प्रोडक्ट एक्सपायरी थी, इधर यू विल गिव मी कंपनसेशन ऑफ 3 लाख रुपीज और आई विल sue at you, मीन्स आप पे मैं केस करूँ। सो हाउ विल यू हैंडल दिस सिचुएशन? मैम एक्चुअली मुझे पहला सुनाई नहीं दिया था थोड़ा सा बफर हुआ था आपने क्या लिया था कॉस्मेटिक शॉप से
मैंने क्या बेचा क्रीम था लिया आपको? था मैंने, क्रीम लिया था क्रीम मैंने, क्रीम। अच्छा फेस अच्छा अच्छा, क्रीम, और यस, वो एंड दैट इज और वो एक्सपायर्ड, उसका। एक्सपायरी वन। ओके ओके ओके, तो आपको आपने वो गल फिर से हाँ जी। कंपनसेशन चाहिए? ओके ओके वो ठीक है, क्रीम यूज कोई करने बात के नहीं। बाद मेरा फेस डैमेजेस हुई है, ब्लैक पैचेस हुई है, सो आई एम केम एट योर शॉप एंड सेइंग कि योर प्रोडक्ट इज एक्सपायरी, इसकी वजह से मेरे फेस डैमेज हुआ है, सो इधर यू विल पे मी कंपनसेशन ऑफ 3 लाख रुपीज और आई विल sue at you. So how will you handle this ओके situation? ओके मैम, एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल मैम आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि हमारे से जो गलती हुई है वो बहुत बड़ी गलती हुई है, हमें पता है। बट मैम आप ये स्टेप मत लीजिए, हमारे पास दूसरा भी ऑप्शन है मैम। आपका जो फेस पे जो भी रिएक्शन हुआ है उसके लिए हम दिल से क्षमा चाहते हैं। तो हमारे पास दूसरा क्रीम है, हम आपको वो देंगे, तो आप थोड़ा सा यूज करने के बाद उससे थोड़ा ठीक हो जाएगा मैम। एक्चुअली वो कवर हो जाएगा पूरा। और एक्चुअली मैम वो गलती से हो गया था हमारे से। सो मैम उसका जो अल्टरनेटिव है तो है हमारे पास, तो हम आपको ऐसी क्रीम दे देंगे कि इससे 15-20 दिन में आपका जो फेस पे जो भी रिएक्शन हुआ है वो पूरा अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा मैम। अगर नहीं तो हुआ मैं तो आप मैम पे हम कैसे आपको ट्रस्ट करूं, मीन्स आपका ये कॉस्मेटिक शॉप है या मेडिकल स्टोर है जो आपके पास हर क्रीम का सॉल्यूशन होगा? मीन्स एक तो आपने एक्सपायरी दिया एंड आप फिर से मुझे कह रहे हो कि आपके शॉप से मैं क्रीम लूं और उससे ठीक रिपेयर हो सकता है मेरा स्किन? मीन्स हाउ विल आई नहीं मैम ट्रस्ट यू एक्चुअली, अगेन? नहीं नहीं मैम, एक्चुअली हमारा शॉप तो यहाँ से बहुत सालों से है और हमारा नाम भी अच्छे से यहाँ पे मार्केट में है मैम। तो इस बार हमारे ऊपर ट्रस्ट कीजिए मैम। ये ऐसी गलती कभी होती नहीं है मैम, बट अभी इस वक्त हो गई है तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट एक बार हम पे ट्रस्ट कर लो मैम, एक्चुअली हम यहीं पे है। आप 15 दिन के बाद भी यहाँ पे आप आ सकते हो, ओके। अगर रिजल्ट नहीं आया तो मैम हम आपके लिए हमेशा यहाँ पे है। तो तो आप अपने कॉस्मेटिक ट्रस्ट। शॉप में एक क्रीम रखते हो या फिर मेडिकल शॉप खोल के रखे हो कि मीन्स कुछ प्रॉब्लम होगा तब सॉल्यूशन दे दोगे? आप प्रॉपर नहीं मैम, कॉस्मेटिक का क्रीम बेचते हो राइट, ना कि मेडिकल स्टोर वाला क्रीम रखते हो आपकी कुछ डैमेज होगा तो रिपेयर करोगे? हाँ यस मैम, एक्चुअली बट उस टाइप में हमारा एक दूसरा क्रीम रहता है कि समझो अगर आपका फाउंडेशन करने के बाद अगर आपको कुछ हो गया है तो उसे कवर करने के लिए बस हम दे रहे हैं। तो आपको अगर अच्छा, मेडिकल कुछ की भी मदद नहीं है डैमेज तो होता है तो उसके लिए आप हम। लोग और सब्स्टिट्यूट रखते हो उसका? नहीं नहीं, एक्चुअली मैम मुझे वो बात नहीं बोलनी थी। आप मेडिकल की मदद तो लेनी पड़ेगी और उसका हम एक्सपेंस भी दे देंगे मैम, उसके लिए कोई बात नहीं है। बट अगर आपको बाहर जाने में कुछ दिक्कत है तो उसको कवर करने के लिए और हम हमारे पास वो जो क्रीम है तो आप लगा सकते हो, तो आपके चेहरे के ऊपर जो भी रिएक्शन हुआ है उससे उससे कुछ उसका रिएक्शन ज्यादा नहीं बढ़ेगा मैम हमारी क्रीम से। आप मेडिकल की यूज अवश्य लीजिए, पर हमारा क्रीम लगाने से आप नॉर्मली आप बाहर जा भी सकते हो मैम एक्चुअली। तो कम से तो कम वो मेडिकल आपको ट्रीटमेंट ठीक सर होने में। आप हमें प्रोवाइड करोगे या मैं खुद के पैसे से मतलब करूंगी? नहीं एक्चुअली मैम हम मदद करेंगे, बट मैम आप भी थोड़ा सा आपका अगर थोड़ा सा हेल्प हो गया, आप अपनी ओर से थोड़े से हेल्प करेंगे तो अच्छा होगा मैम, कि आप भी थोड़े से पैसे गलती हुई है एक तो एक्चुअली मेरा मैम हमसे। स्किन डैमेज बट हुआ है एंड यू आर सेइंग कि मैं फिर से आपको कॉपरेट करूं? क्या मुझे आपको हेल्प करना चाहिए या आप मुझे मेरा करोगे इस टाइम पे? नहीं मैम, एक्चुअली हम देने को तैयार है, बट मैम एक्चुअली मैं ऐसा बात कर रहा हूँ कि हम दे भी देंगे, इससे कुछ बात नहीं है। बट मैम इस टाइम पे हम पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर है और ये तो हमारे रेपुटेशन का भी सवाल है, क्योंकि बहुत सालों से हमारा दुकान यहाँ पे कॉस्मेटिक का है। तो हम आपको रेपुटेशन का डिसअपॉइंट नहीं सवाल है करेंगे। तो सर आप फुल पे करोगे ना मेरा? नहीं हाँ, यस मैम, बट इस वक्त कैसा चल रहा है मैम, कोरोना की वजह से हम पे भी बहुत लोड आ गए हैं मैम एक्चुअली, वर्कर लोगों का पगार वगैरह और थोड़ा या सा इफेक्ट ओके हो गया योगेश, है ओके मैम। ओके, perfect perfect, I got your point. So now I'm going to ask you few academic question, okay? यस मैम। Ready? Okay. यस Please मैम। tell me what is Newton's second law? न्यूटन सेकंड लॉ, एक मिनट मैम, कैन आई टेल फॉर्मूला डायरेक्टली? फॉर्मूला? फोर्स इज, ठीक है, फॉर्मूला यस बताइए मैम, पहले मुझे। मैम फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन, डेफिनेशन कुछ बता सकते हो?
एक्चुअली मैम यस, बट आप भी बता सकता हूँ, बट मुझे अभी थोड़ा सा रिकॉल नहीं हो रहा है। Okay. न्यूटन सेकंड Okay. लॉ Okay. मैम, Okay. Good. क्योंकि मैम कुछ ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ. हाँ जी. हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ. What is the area of rectangle? मैम लेंथ इनटू ब्रेथ। Length into breadth. Okay. And how many states and UTs in India? व्हाट मैम? How many states हाउ मेनी? and states and union territories in India? Yes, actually there is 8 union territories, Okay. and uh, I think 26 states. 26. 26 states. Sure. Okay. Ah, yes, ma'am. What is the capital of Kerala? Capital of Kerala, ma'am. I think Tiruvananthapuram. And Goa? Panji. What is the capital of Panji? Okay. Could you tell me four name of UTs? Delhi, Diu Daman, Andaman Nicobar, Lakshadweep. Okay, perfect. How many colors in rainbow? 7, ma'am. Please tell me in sequence wise. Red, orange, green. Sequence wise. हाँ मैम, sequence wise ना? Sequence wise, yes. मैम एक्चुअली बताता हूँ मैम. मैम रेड, ऑरेंज, ग्रीन, Sure. ब्लू. ये सीक्वेंस है. रेनबो का सीक्वेंस मैम कलर बताइए मुझे. मैम उसमें तो सीक्वेंस तो अभी, या एक्चुअली मैंने बचपन में जो हमें सिखाया गया था वो रॉय जी ब्लू उसका शॉर्ट फॉर्म होता है, वो तो मुझे पता था, वो तो ऐसे ही सिखाया था अभी. तो मैंने भी उतना अभी ही की याद किया आ था. रही है. नहीं, बट हमें सीक्वेंस में ऐसा ही पता था कि रॉय जी ब्लू में क्या होता है, रेड तो ऑरेंज रेनबो. ग्रीन. अच्छा, आपके स्कूल में ऐसा सीक्वेंस बताया था? एक्चुअली सॉरी. Okay, no issue. My last question. Okay, last question with you. So, what is ratio and fraction? Sorry ma'am, what is ratio and Fraction. okay? Ma'am, ratio means 5.12 या 10/5 वगैरह, that's called the ratios. Or fractions means it is in points, such as if we divide 1/3, that we get the answer in points, Yogesh, 0.33 what is वगैरह. ratio? Could you tell me once again what is ratio? Ma'am, At least ratio give me a means, proper definition. ma'am, ratio means we have to divide two numbers only, na? And And what is divide? ma'am, ratio means actually, ma'am, actually, हिंदी में I भी tell बता you, सकते हो. अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तब हिंदी में भी बता दो. नहीं मैम, एक्चुअली क्या रहता है मैम, अगर दो लोगों, समझो दो लोग हैं, तो ठीक है. प्रोपोर्शन उनका जब लेते हैं ना हम, कि हाँ समझो एक का 50 केजी वेट है और एक का 60 केजी वेट है, तो अगर हम उन दोनों को जब कंपेयर करते हैं, उनका रेशो, उनको उन दोनों को कंपेयर करने के बाद जो हमारा आउटपुट निकलता है, तो उसे रेशो बोलते हैं कि हाँ इसके बराबर ये कितना है. And what is fraction? एंड फ्रैक्शंस मींस मैम जो आउटपुट इन पॉइंट्स में आता है, यानी 0.3, 0.5 वगैरह, तो उसे फ्रैक्शंस. तो डेसिमल किसको कहते हैं योगेश? एक्चुअली डेसिमल यूज. डेफिनेशन बता सकते हो मुझे कि बस ऐसे 0.3 वाला बताना है?
मैम एक्चुअली क्या है कि जिसे हम प्रॉपर डिवाइड नहीं कर सकते, कि समझो आप ठीक है। 10/5 = 2, जो आउटपुट आता है वो तो पूरे डिजिट में, एक पूरे कंप्लीट डिजिट में आता है। बट फॉर एग्जांपल 5/3 जो हमारा है, तो वो इनकम्प्लीट डिजिट में आता है, कि समझो पूरा नंबर नहीं आता है। समझो वो उसका आउटपुट 1.33 वगैरह ऐसा आता है, तो वो फ्रैक्शंस हो गए मैम। योगेश, आपकी वीडियो स्टक हो गई है एक्चुअली। मैम एक मिनट मैम। ओके, परफेक्ट। सो योगेश, यस मैम। एकेडमिक, योर एकेडमिक इज नॉट सो गुड, क्योंकि बायजूस में क्या है कि आप बीडीए अगर बनोगे तो आपको स्टूडेंट को काउंसिल करना होगा, राइट? एंड यस जैसे मैम। कि आपका एकेडमिक पार्ट उतना स्ट्रांग नहीं है, तो आप हैंडल कैसे करोगे चीजें, ये बताओ। मैम एक्चुअली अब मैं, वो मेरा वीकनेस है, तो मैं श्योरली उस पर इम्प्रूव करूँगा मैम, श्योरली। और उसके बावजूद रह गया है नॉन टेक्निकल पार्ट, तो उसमें तो आई थिंक आई एम फिट एंड, तो दैट्स उसका गुड, जो दैट्स ग्रेट। बट क्या है ना कि अगर आप बीडीए बन जाओगे तो आपको एकेडमिक पे मतलब काम करना होगा, क्योंकि यू नीड टू सेल योर बायजूस प्रोडक्ट, जहाँ पे आपको बच्चे को यस यस हैंडल मैम। करना है। सो योर एकेडमिक इज नॉट सो गुड, सो व्हाई शुड वी हायर यू देन? मैम एक्चुअली कैसा है कि बच्चों को मैं मेंटर करने, बच्चों को मैं प्रोडक्ट के बारे में तो बता दूंगा, और बट मैम एक्चुअली जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है मैम, वो तो पेरेंट्स होते हैं मैम, वो तो बात सही है। तो एज पर माय प्रोफाइल मैम, मुझे ये बेचना है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रेशर, ज्यादा से ज्यादा वर्क है ना, तो मुझे नॉन टेक्निकल पार्ट पे करना होगा, क्योंकि के प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में अगर मैं बता दूंगा, दैट्स और गुड योगेश, मैं दैट्स ऐसा, गुड। बट क्या होगा कि कभी आपको बच्चे ने आपको क्वेश्चन कर दिया, क्रॉस क्वेश्चन कर दिया आपसे, वो तो आपको टीचर समझेंगे, राइट? वो तो नहीं जानते कि यू आर द सेल्स पर्सन और यू आर द बीडीए। तो टीचर, बच्चे ने आपसे क्वेश्चन कर दिया, तो आप कैसे मतलब करोगे? मतलब एकेडमिक भी होना इम्पोर्टेंट है ना, एकेडमिक पार्ट भी स्ट्रांग होना इम्पोर्टेंट है। तो कैसे आप हैंडल करोगे यस मैम। सिचुएशन को, बताओ। एक्चुअली मैम उस वक्त में तो पोलाइटली उसे बता दूंगा कि एक्चुअली कैसा है कि इस ऐप में जो भी आपको सब कुछ है, वो आपके टीचर्स अलग रहते हैं और हम तो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। तो Okay, okay, okay. मैं, So now I'm going to ask you last scenario, BDS scenario based question, okay? ओके मैम। Okay, यस good. मैम। So my first question is to you. Suppose I'm a teacher, I'm a government school teacher, and my child has downloaded the Byju's application 15 days ago, but I don't know about this thing, means I'm not aware about this thing. So you need to call me and book a video session. So how will you convince me? ओके मैम। सो गुड आफ्टरनून मैम। उस वक्त का बता रहा हूँ, अगर समझो मैंने दोपहर को कॉल किया था। ओके, Okay. गुड आफ्टरनून मैम। तो Good मैम afternoon. मैम आपके चाइल्ड ने हमारा ऐप डाउनलोड किया है, बाईजूस ऐप डाउनलोड किया है, और वो 15 दिन से बहुत अच्छी तरह से वो उसने बहुत सारे वीडियोस भी देख डाले हैं। तो आई थिंक मैम वो बहुत इंटरेस्टेड है उस ऐप में, और उसने कई टेस्ट भी दिए हैं मैम, क्योंकि हमारा 15 दिन का फ्री ट्रायल रहता है मैम। तो उसमें उसने टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर किया है, बहुत इंप्रेसिव स्कोर हुआ है मैम उसका। तो मैं, मुझे ऐसा लगता है मैम उससे बहुत अच्छा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है उसमें। तो आई थिंक आप उसका फीचर्स और उसका पूरा बेनिफिट उठाने के लिए, क्या मैं आपके साथ एक फ्री डेमो बुक कर सकता हूँ मैम? वो पूरा टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ 1 रुपया भी पे नहीं सर करना बट है। तो मैं टीचर हूँ, मैं अपने बच्चे का पढ़ाई मैं घर पे देखती हूँ। तो एज ऑफ नाउ आई डोंट नीड योर प्रोडक्ट। बच्चे ने शायद मैम मिस्टेकली वो, डाउनलोड कर लिया होगा या फिर फन क्लियर किया होगा, बट नहीं 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 हमें नहीं, अभी ऐसा प्रोडक्ट एक्चुअली नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने बच्चे को पढ़ाती हूँ घर पे, मैं खुद टीचर हूँ एक। नहीं नहीं, वो बहुत अच्छी बात है मैम कि आप टीचर हैं, आप खुद उस पर ध्यान देती है। बट मैम माय पॉइंट इज दैट कि आप, आपको तो आपका जॉब रहता है मैम,
तो कभी कभी कैसा होता है कि वर्कलोड और टाइम लिमिटेशंस भी रहता है, तो आप कभी कभी उसके ऊपर पूरा ध्यान नहीं दे पाओगी। तो हम बाईजस क्या करते हैं, हम उसके साथ 24/7 रहते हैं मैम। एक्चुअली उसे कभी भी डाउट आ जाए तो हमारा सपोर्ट हम हमेशा टेक्निकल सपोर्ट रहता है। अगर उसे कुछ डाउट सॉल्विंग करना हो तो हम उसे टेक्निक मेंटोर भी देते हैं। और बात रही सबसे इम्पोर्टेंट बात, तो ये है मैम, आप सिखा रही हो ये मुझे भी पता है, बट सब आजकल कैसा है मैम, जो ट्रेडिशनल मेथड है कि ऑडियो लर्निंग वगैरह, तो उसकी वजह से क्या होता है मैम, बच्चे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, तो बच्चों का ज्यादा इंटरेस्ट किस में रहता है मैम, थोड़ा सा कार्टून एनिमेटेड। सो हमने जो वीडियो क्रिएट किए हैं ना सब, वो सब हमारे 3D एनिमेशन, यानी उन्हें वो मूवी टाइप लगेगा मैम, कार्टून लगेगा। तो आपको प्रेशराइज नहीं करना पड़ेगा मैम कि उन्हें पढ़ने के लिए, वो खुद इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, अपना असेसमेंट अपना टेस्ट देंगे, और उसके बाद जो भी कुछ उसका इम्प्रूवमेंट है, वीकनेस है, वो भी हम बताते हैं और आप भी ट्रैक कर सकते हो मैम। Okay, I got your point. But might be मेरे बच्चे ने मिस्टेकली डाउनलोड किया होगा, so मुझे नहीं लगता है कि वो नहीं नहीं मतलब नहीं मैम, रेडी एक्चुअली होगा ये। क्या मैं नहीं, भी रेडी एक्चुअली नहीं हूँ इस कैसा है मैम, चीजों के लिए? नहीं एक्चुअली ठीक है मैम, कोई बात नहीं मैम। अगर मिस्टेकनली भी डाउनलोड किया है मैम, अगर कोई बंदा मिस्टेकनली भी डाउनलोड करता है तो 15 दिन में उसने बहुत सारे वीडियोस देख डाले हैं, तो इससे वो पता चलता है मैम, एक्चुअली ही इज इंटरेस्टेड मैम, एक्चुअली ही इंटरेस्टेड, उसने इंटरेस्ट दिखाया है इसलिए उसने इतना किया, सब कुछ देखा है मैम, उसे बहुत अच्छा लगा है इसलिए वो, उसने टेस्ट भी दिया है, उसे इंटरेस्ट है इसलिए उसने अच्छे नंबर भी लाए हैं मैम। तो मुझे ऐसा लगता है। और बात रही मैम कंपटीशन की, कैसा है मैम, आपका बच्चा आपके स्कूल में, आपके घर में, आपको पता है कि वो बहुत सिंसियर है और क्लेवर है और ब्रिलियंट है, बट बात रही स्टेट लेवल नेशनल लेवल, तो वो कहाँ पे स्टैंड करता है ना, वो भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि हमारे पास क्विज रहते हैं जो नेशनल लेवल पे रहते हैं। उसी साल के उसी स्टैंडर्ड के जो सब बच्चे नेशनल लेवल पे जो होते हैं, नेशनल लेवल पे आपका बच्चा कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, अगर आप अभी से उसे उसके लिए तैयार करोगे ना, तो वो कंपटीशन में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा मैम। और ये जो ऐप ओके। है ना मैम, एक्चुअली हम्म। ये ऐप उससे बोर नहीं होगा सच में, क्योंकि मैम हमने जो भी कंटेंट उसमें डाला है ना, टॉपिक, वो हमने उसे स्टोरी टाइप बना के 3D एनिमेशन करके बनाया है मैम, तो उसे विजुअलाइजेशन बहुत अच्छे से होगा। और कैसा होता है मैम, ब्रेन को विजुअलाइजेशन अच्छा लगता है, आप तो टीचर है, आपको तो पता होगा कि ब्रेन को विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा लगता है, और वो रिटेन ज्यादा कर पाते हैं। क्योंकि कैसा है, रीड करने से क्या होता है, समझो बड़े से बड़े लोग भी आजकल ज्यादा जो भी पढ़ते हैं तो 2-3 घंटे के बाद थोड़ा भूल जाते हैं। आपको तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा बच्चों का, तो आपको भी पता है कि विजुअलाइजेशन से क्या होता है मैम, क्योंकि उसने कार्टून देखा होगा, कौन सा छोटा भीम वगैरह मूवी देखा होगा, तो वो 2 साल पहले का भी वो अच्छे से याद कर लेता है। तो हमने उसी तरह वो कार्टून फॉर्मेट में और मूवी फॉर्मेट में वो ये सब बनाया, अगर उसने देखा तो उससे ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी मैम मेमोराइज करने के लिए, और वो अच्छे नंबर भी ला सकता है, उसका कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी बहुत अच्छा होगा मैम उससे। क्योंकि मैम कैसा होता ओके। है, अगर अभी से बेस तैयार हो गया है ना, तो आगे ज्यादा दिक्कत नहीं आती है मैम।